Thank you. Tell us, what is the reason you said yes to this single? आई थिंक आप लोगों ने थोड़ा बहुत सुना होगा, शूट देख रहे थे आप लोग, गाना सुना होगा आपने. मैं जगजीत सिंह जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मुझे जब ये गाना सुनाया गया मुझे जगजीत सिंह जी की याद आई. वो फ्लेवर, वो वाइब इस गाने से, वो महक जगजीत जी की मिली मुझे. तो मैं मना ही नहीं कर सकता क्योंकि जगजीत जी इज़ गॉट अ बिग पार्ट ऑफ माई हार्ट. ही इज़ बीन अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ द फैमिली ऑफ माई पेरेंट्स. एक he used to consider me like his godson, and my entire family miss him every day, and so when this song came to me I said I have to do it. It will be like a tribute to Jagjit ji in a sense. And singer, gayak, producer हैं यहाँ पे मेरे बगल में. He's a wonderful man. He is very down to earth and very sweet and humble. Navneet ji is a person who is a friend now because we've done a show together. एक शो किया था हमने अम्मा, शबाना जी, युविका चौधरी. 1 महीने का शूट था लगातार, morning to night. We had a great fun. We had a ball during that shoot. So when he approached me with this saying that he's directing it, I said I have to, of course, be a part of it. And then this beautiful girl right next to me, who wouldn't want to work with her? So multiple reasons. Nada, what's your view? So basically, my family is into singing and we all are like pretty much singers, and I have a lot of singers in my family. I sing myself as well, and the song was really exciting for me because this is something which is very different. It's a ghazal. Generally you see a lot of melodious tracks coming in the market, or there's a lot of pop culture which is coming back, or there are different type of music which is coming back in the market, and there are a lot of music albums happening, but this is something different. This is a ghazal, and Navneet ji is shooting it very aesthetically, very beautifully. So when I got to know the complete team is actually from a film background, and Navneet ji has worked with even one of my favorite actor, Irfan sir. So I got really excited, and the team was lovely, and I did a web some time back, kuch mahine pehle, where I was shooting a web, and a day prior Ashmit was shooting the web with the same director. That is some other story though. So I got to know that okay, Ashmit is shooting, and today I was like, hey, hello, we are here catching up. We could not meet then, but we are meeting here. So it's a chance to associate with like great artists and great technicians. And you have Karthik ji, who's the producer for the album. So in totality, it's a great album, and wish us luck. I hope we cross like millions and millions of views, which every artist wants. What was the director brief to you, Manara? So the director brief was basically we are going to be shooting it very aesthetically. So मैं बता सकती हूँ थोड़ा सा? Yes. So it's a story, it's a narrative which is being given within like 3 minutes. So it's a story which is getting bounded with the ghazal take to it, and you will see a different side of me, which I always say. And then the 3-minute shoot is going to be very performance oriented, so you will see a variation in my performance, and it might give you a slight touch of my first film which I did here in Bollywood, but yeah, shot very differently. And you will also see me a lot in like Indian wear, which people have not really seen me. They've always seen me in western wear and everything, but Navneet ji is trying to give a different take, and you're going to be seeing me in a lot of saris and lehengas. And although in my personal life I'm a sports shoes kind of person, but today I'll try and carry it. वो ऐसा कौन सा मौका होता है अस्मिता मनारा जी, जब आप लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ पर सुकून चाहिए, यहाँ पर आज थोड़ा सुकून मिला, या आज ये शूटिंग करके थोड़ा सुकून मिला घर पे? आप बताइए, आप लोग. देखिए 1 साल तक ऑलमोस्ट हम सब ज़्यादा ही सुकून हो गया. घर पे लॉकडाउन थे, सुकून ही सुकून था, तो हमें अब कैमरे के सामने सुकून मिलता है. दिस इज़ आवर पैशन, दिस इज़ आवर लव, आवर फर्स्ट लव. तो जब हम कैमरे के सामने आते हैं हमें सुकून मिलता है एंड खुशी मिलती है. और जब टीम अच्छी हो, जैसे कि मनारा जी कह रही थी, द टीम इज़ ग्रेट, यू वर्किंग विद ग्रेट आर्टिस्ट, यू वर्किंग विद अ डायरेक्टर हु इज़ very talented and a brother, and producer was so sweet and humble and such a great singer, so you want to be a part of it. So
सुकून ही है, और हम यहाँ पे इतनी खूबसूरत लोकेशन पे हैं, सुकून ही सुकून है। अश्विन, क्या नया ट्रेंड एक दौर हमने देखा है 90 के दशक में, जब इस तरह की गज़लों का दौर था, पंकज उदास और भी जगजीत, स्वर्गीय जगजीत साहब जी। उस दौर को लाने की कोशिश है, क्योंकि जब जैसे ही आपने भी कहा और हम सबको भी महसूस हुआ, जैसे ही हमने सुना है ऐसा एहसास हुआ कि जगजीत सिंह जी की याद ताज़ा हो। Do you think it's a new start to reset that trend? Yeah, of course. Anything which is new, which is coming back. So the music is such that music, it always comes back. Music never goes. So this is something which is coming back, and we are bringing it with a great team. So of course. I think ghazals have their place and will never be out of our system, because it's something that touches your soul. We have, like Manara was saying, this trend of pop music, Punjabi music, and these songs, yeah, for sure, they're great songs and hit गाने हैं, लेकिन एक साल के अंदर आप वो गाने भूल जाते हैं। लेकिन songs like ghazals, which are so evergreen, they songs that touch your soul will always remain with you. So I think this is one of them, and we hope that ये super hit गाना हो, and इनकी जो एल्बम है, काफ़ी गाने हैं इसमें, काफ़ी गज़ल है इसमें। I hope that all of them do well, and it starts a trend. I hope that this because it's part of our culture. Ghazals is a very strong part of our history and our culture, so it's very important that we keep it alive. Yeah. और मंदारा जी, थोड़ा सा पूल का शूटिंग का एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे। हमने देखा काफ़ी रिटेक लिया, एंड लाइक हॉट यहाँ पर है, लेकिन आप बताइए थोड़ा सा। आई थिंक पूल, बारिश, इसका, इन सब चीज़ों का, वाटर बॉडीज़ का मेरे से बहुत पुराना कनेक्शन है। आई हैव डन अबाउट 8 फिल्म्स राइट फ्रॉम माई फर्स्ट फिल्म विच आई डिड हियर इन बॉलीवुड। तब से लेकर अब तक मैं कोई भी फिल्म कर लूँ, चाहे एक रोम कॉम कर लूँ, चाहे मैं एक स्वीट सी लड़की कर लूँ, या फिर मैं एक बहुत नॉटी सी लड़की कर लूँ, बट बारिश का सीन तो होना ही है और पानी का सीन तो होना ही है। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ नॉट न्यू फॉर मी, एंड नाउ आई नो कि अच्छा, अब मुझे लग रहा है आने वाली, अभी 8 कर ली, आने वाली 8 फिल्मों के लिए मुझे प्रिपेयर रहना चाहिए। एंड आई थिंक आने वाली फिल्मों के लिए मैं डायरेक्टर को जाके बताऊँगी, अच्छा ये वाला शॉट मेरा हो चुका है, अब आप ये कैंसिल कर दो, अब आप कोई ऐसा वाला शॉट बनाओ। सो आई कीप माई क्रिएटिविटी गोइंग इन एंड अराउंड द पूल और the water elements, I would say. अश्मित जी, आप बताइए थोड़ा सा आज के सीन के बारे में, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? मैं बस भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि पानी में ये है और मैं नहीं। थैंक यू नवनीत, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू फॉर पुटिंग हर इन द वाटर। ओके, अश्विन मनारा, मेरा सवाल आप दोनों से है, किस तरीके से ये गाना आप दोनों तक पहुँचा? कैसे पहुँचा? ये तो ये बताएंगे। द टाइम कार्तिक जी ने हमें गाना सुनाया, और वी वांटेड समवन जिनकी एक इमेज हो मार्केट के अंदर, वो कैन कैरी द सॉन्ग। क्या होता है, आप शूट तो किसी भी आर्टिस्ट पे कर लेते हैं, लेकिन वो जो राइट इमोशन इमोट करना होता है, वो हर एक के बस की बात नहीं होती, और मतलब वो यू कैन सी दैट कि वो निकल के नहीं आ रहा। सो मनारा, जितना भी मैंने मनारा का काम देखा था, शी इज़ वेरी गुड एट गिविंग एक्सप्रेशन विदाउट सेइंग, शी स्पीक्स अ लॉट। इवन अश्मित भाई विच आई हैव वर्कड विद इन पास्ट, तो मोस्टली बिना बोले जब आप सारे इमोशंस इमोट कर देते हो, और ये गाने में इतने सारे इमोशंस हैं, अगर आप जब सुनोगे आपको पता लगेगा कि इसके अंदर इतने सारे इमोशंस हैं जो आपको एक्सप्रेस करने हैं थ्रू आवर फीलिंग्स। सो दैट्स व्हाई वी कनेक्ट बोथ ऑफ देम। आई नो, आई कॉल देम आपकी ब्रो, मतलब हमारे पास एक बहुत अच्छा गाना है, हमने सुनाया तो दे बोथ लव्ड इट, सो दैट्स हाउ आवर जर्नी स्टार्ट्स। एंड व्हाट वाज योर रिएक्शन? आपके क्या रिएक्शन थे उन्होंने गाने के बारे में बताया? तो उन्होंने ही जैसे हमें ढूंढ लिया। सो माई रिएक्शन वॉज एक्चुअली नवनीत जी कॉन्टैक्टेड मी थ्रू माई मॉम, एंड मम्मा के थ्रू कुछ आई डोंट नो व्हाट वाज द कनेक्शन, एंड वी जस्ट हैपेंड टू मीट, एंड आई वाज लाइक अच्छा ये गाना है, ओके फाइन, अच्छा क्या कॉस्ट्यूम है, अच्छा ठीक है, उसके बाद व्हाट्स योर प्लान, एंड यू नो आई एम अ पर्सन हु टॉक्स अ लॉट इन माई पर्सनल लाइफ, तो मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस थे। एंड अगला सवाल प्लीज। अगला सवाल, सो नाउ यू नो द स्टोरी, एंड उसके बाद नवनीत जी वाज लाइक मनारा आर वी शूटिंग? आई सेड ओके लेट्स शूट। Like I said, Mickey Bhai is a brother,
व्हेन ही अप्रोच मी, आई डोंट थिंक मेरे पास चॉइस ही था। उन्होंने कहा कि ये गाना है, हमें करना है और आप बस एक डेट दे दो जब आप फ्री हो। एज सिंपल एज दैट। बट व्हेन आई हर्ड द सॉन्ग, जब मैंने गज़ल सुनी, लाइक आई सेड, मुझे जगजीत अंकल की याद आई एंड आई जस्ट हैड टू डू इट बिकॉज इट्स लाइक अ ट्रिब्यूट टू हिम, सो इट वाज अ नो ब्रेनर। See, to the director, what is the most challenging part while shooting it? You know, it starts on a very sensual note. She's going in a swimming pool. It has to be that settled. It has to look, you know, decent. It Yeah. should not be any vulgar, you know, vulgarity. And even we can make out. What is the most difficult part while shooting this? सी आप इमेज तो कैप्चर कर लेते हो, लेकिन राइट इमोशन जब तक आप इमोट नहीं कर पाते हो, तब तक आप जो कहना चाह रहे हो वो कभी भी ऑडियंस से कह नहीं पाओगे। तो विजुअल कैप्चर करना इज़ अ वन थिंग और राइट इमोशन कैप्चर करना इज़ अ वन थिंग। सो मैंने सबसे चैलेंजिंग पार्ट सबसे पहले ही सॉल्व कर लिया था कि राइट एक्टर्स को कास्ट करके। जैसे मेरे पास में राइट एक्टर्स आ गए तो आई जस्ट नरेटेड देम कि व्हाट आई वांट एग्जैक्टली फ्रॉम दिस स्टोरी, ये म्यूज़िक क्या कह रहा है और इससे हमें क्या कहना है, ऑडियंस तक कौन सी स्टोरी पहुँचानी है। सो वंस आई नरेटेड देम, उसके बाद मुझे सिर्फ ये बताना पड़ा इन लोगों की भैया इस सेक्शन में ये हो रहा है, इस सेक्शन में ये हो रहा है, रेस्ट दे हैव डन देयर पार्ट। बहुत सरप्राइज होता है जब आप पहला सीन हमने देखा, मनारा वाज वॉकिंग फ्रॉम देयर एंड देयर यू नो सॉन्ग गोइंग इन द बैकग्राउंड, आपको कुछ और फील आता है, लेकिन जब गाना बजता है तो यू नो यू माइंड गेट सी दैट सरप्राइज, वो सरप्राइज देखने के लिए ऑडियंस आपके प्लेटफॉर्म तक आती है। और ओके, इट वाज इंटेंशन कि अगर आप डायरेक्टली किसी को कोई चीज़ स्ट्रेट वे में प्रेजेंट करोगे तो लोगों को लगता है अच्छा ये तो मैंने देखा हुआ है, ये तो मैंने सुना हुआ है। बट आप जब उसका खाली अप्रोच, दुनिया में कोई भी कहानी नई नहीं है, हर कहानी आपने कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे सुनी है, बट उसका जो प्रेजेंटेशन है, बोलने का तरीका है, वो हमेशा नया होता है। तो वी आर ट्राइंग टू से अ सेम स्टोरी विद अ डिफरेंट प्रेजेंटेशन, बट इट इज़ अ वेरी इमोशनल, द सॉन्ग इज़ वेरी इमोशनल एंड द कंटेंट इज complementing each other, I will say. sensual, emotional. No, not at all. It is not in that way. It is something which will connect to your heart. ये आपके हार्ट को कनेक्ट करेगा, आपके इमोशंस को कनेक्ट करेगा, आपकी यू विल फील, जितने भी लोग आप लोग यहाँ पे जब आप गाने को पूरी तरह से सुनेंगे और विजुअल देखेंगे, आप इससे कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे रिलेट कर लेंगे। जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है डायरेक्टर के लिए, वो हमने करने की कोशिश की है इसके अंदर। सर के सवाल में और एक ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि कैप्टन ऑपोजिट हैं आप, तो जब इनके साथ में आप काम करते हैं, मनारा एंड अश्मी, कितना सुकून देते हैं आपको एंड कितना टेंट्रम दिखाते हैं, या आप बताइए भाई। जब देखो, जैसे मुझे कोई टेंट्रम दिखाएगा मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो मैं बोलना चाहता हूँ अगर वो समझ जाए तो माई लाइफ इज सॉर्टेड। तो विद देम माई लाइफ इज सॉर्टेड कि जो मैं बताना चाहता हूँ उनसे, उनको मेरे को सेकेंड टाइम एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता। दे जस्ट इमोट एंड गिव मी दोज रिएक्शंस। अच्छा, किस प्लेटफॉर्म पे हम इसको, इस गाने को ला रहे हैं और ये वीडियो को भी ला रहे हैं, सोशल मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं? कार्तिक भाई प्लीज़ सर बताइए। एज सुन एज पॉसिबल आपको बताएंगे, अभी डेफिनेट कुछ है नहीं। थैंक यू एवरीवन। थैंक्स गाइस। प्लीज आप लोग जी बेसिकली हमारा प्रोडक्शन हाउस है गुरुपद रज फिल्म्स। वी आर कमिंग अप विद क्वाइट अ फ्यू एल्बम्स एंड फिल्म्स। इससे पहले एक हमने वीडियो बनाया है विद पूजा बिष्ट एंड मुदस्सिर है, जिन्होंने क्रैकडाउन वगैरह किया है, एंड दीपक गर्ग है, तो दैट हैज़ बीन ऑलरेडी शॉट। वो एक म्यूज़िक वीडियो है जो भी गज़ल है, उसको मैंने ही डायरेक्ट किया है उसमें। और इसके अलावा ये एक नया एक म्यूज़िक वीडियो ये है जो आज आप देख रहे शूट हो रहा है। इसके अलावा हमने एक भजन किया है भाग्यश्री जी के साथ। वी आर कमिंग अप विद क्वाइट अ फ्यू मूवीज़ ऑल्सो। तो गुरुपद रज को हम स्टैब्लिश करना चाहते हैं। गुरुपद रज ही हमारी प्रोडक्शन हाउस है जिसको वी आर स्टैब्लिशिंग इट विद क्वाइट अ फ्यू प्रोजेक्ट्स विच विल बी सीइंग इन फ्यूचर्स टू कम। तो उसमें सारे अच्छे स्टार कास्ट के साथ अच्छे गाने, कुछ एल्बम्स है, कुछ मूवीज़ है विच वी आर कमिंग अप विद। तो दैट इज़ व्हाट इट इज़ आई वांट टू प्रोजेक्ट राइट नाउ। जी सर, आपके तरीके से। हाँ जी सर, मैं कार्तिकेय जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ काफ़ी महीनों से, और ये 1 महीने में मैं इनके साथ ये 4th सॉन्ग शूट कर रहा हूँ। और सारा मैनेजमेंट मुझे अच्छा लग रहा है इनके साथ सारी चीज़ें अरेंज करने में, लाइक लोकेशन हो गया, कैमरा इक्विपमेंट्स और एंड अदर टेक्नीशियंस वगैरह। और उसके अलावा मुझे लगता है कि कार्तिक जी के साथ काम करके मुझे भी ये होगा कि हाँ वाकई में मैंने कुछ किया इंडस्ट्री में इतने सालों में। और जैसे सर ने बताया अभी भाग्यश्री के साथ हम लोगों ने किया, नेहा बिजली के साथ किया, आज ये शूट कर रहे अश्मी जी के साथ और इनके मनारा जी के साथ। और फ्यूचर में भी इनका मेरे ख्याल से 1st वीक अप्रैल में हम लोग एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए एक फिल्म स्टार्ट कर रहे हैं।
तो उसमें भी रिकॉर्डिस्ट है, हाँ इन्होंने रिकॉर्ड किया दोनों गाने. ही इज अंकुर एंड ही इज दीपक. मुझे बताइए जरा गाने रिकॉर्ड करने के बारे में कैसा experience रहा? First of all, we are very privileged and fortunate to work with Karthik Sai and his team. और गाना बहुत खूबसूरत है. It's a beautiful song. We loved working on that track. It's an amazing track and we loved. It was fun. और And it's always pleasure to work with Karthik Sai and his Yes. compositions be so good and बहुत ही खूबसूरत कंपोजिशन है. I hope सबको अच्छा लगेगा. we to actually They are both doing it doing it together. Both So it's like recordists it was makes really a the good time working on this song. story. So when we met Karthik Sai in our studio, first AMV time, Studios, AMV yeah. Studios. So that was a great. From that the journey meeting him. began and Yeah. it's a beautiful journey. It's a beautiful. I've come across many songs till now, and this is a huge song for us, and lucky to be a part of this. Yes. So. Thank you.